ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک کسان اپنے چھوٹے سے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں مرغیوں کے پنجرے بنائے ہوئے تھے جس میں اس نے بہت ساری مرغیاں پالی ہوئی تھیں۔ کسان کی زمین سے جو بھی کمائی ہوتی وہ اس سے مرغیوں کے لیے اچھی خوراک لے کر آتا تھا تاکہ اس کی مرغیاں اچھی طرح پرورش پا سکے۔ ارے بیٹا، مرغیاں تو بہت اچھی تیار ہو گئی ہیں۔ قصائی کی دکان پہ جا اور مرغیوں کے بیچنے کی بات کر۔ ابو جان، آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمیں مرغیاں بازار میں نہیں بیچنی چاہیے۔ ہمیں ان کے انڈوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ انڈوں سے ہمیں زیادہ پروفٹ ہوگا۔ نہیں بیٹا، ہم آدھی مرغیاں بیچ دیں گے اور آدھی مرغیوں کے انڈے نکلوا کر بیچیں گے۔ نہیں بیٹا، اس طرح ہمیں پیسوں کی کمی بھی نہیں رہے گی اور انڈوں کا کاروبار بھی ہو جائے گا۔ اب تو کسائی کے پاس جا اور مرغیاں بیچنے کی بات کر۔ واو! ٹھیک ہے ابو جان، میں ابھی جاتا ہوں اور بات کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر بٹو گھر سے نکل جاتا ہے اور مرغیوں والی دکان پر پہنچ جاتا ہے۔ آؤ بھائی آؤ، کتنے کلو مرغی کا گوشت لینا ہے تمہیں ایسا گوشت بنا کے دوں گا تم چٹ پٹ کرتے پھرو گے۔ نہیں بھائی صاحب، میں مرغی کا گوشت خریدنے نہیں آیا۔ ہم نے تو خود مرغیاں پالی ہوئی ہیں، اسے بیچنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ ایک مرغی 700 روپے کی دوں گا، اب آپ خود ہی دیکھ لو آپ کو کتنی مرغیاں چاہیے۔ ارے موٹے، آیا بڑا سیل مین، سارا موڈ خراب کر دیا۔ مجھے لگا تو گوشت لینے آیا ہے، چل نکل یہاں سے، مجھے تجھ سے مرغیاں نہیں خریدنی۔ بھائی صاحب، مرغیاں خریدنی ہے تو خریدو، لیکن بدتمیزی نہیں کرنی۔ ویسے بھی میں آپ کا بھلا سوچ رہا تھا۔ آپ 1000 روپے کی مرغی بیچتے ہو، میں 700 کی دے رہا تھا۔ اتنا تو میرا ہمدرد نہ بن، چل نکل میرا ویر یہاں سے۔ ارے لڑکے، تو اس بدتمیز انسان کے کیوں منہ لگ رہا ہے؟ آجا، میں تجھ سے مرغیاں خرید لوں گا۔ بٹو اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ ارے انکل، آپ نے اس بدتمیز دکاندار کے پاس دکان کھولی ہوئی ہے، آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ ارے بیٹا، میں اس کے منہ نہیں لگتا، میں اپنی روزی کماتا ہوں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ ارے انکل، اب میں آپ کو ہی مرغیاں بیچا کروں گا، لیکن 700 کی نہیں 600 کی۔ اس طرح آپ کی کمائی اچھی ہو جائے گی۔ ارے بیٹا، پھر تو تم کل سے ہی مجھے مرغیاں دینا شروع کر دو۔ ٹھیک ہے انکل، کل سے میں آپ کو مرغیاں پہنچا دوں گا۔ یہ کہہ کر بٹو وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ پریشان اسے دیکھتا رہتا ہے۔ یہ میں نے کیا چغلی مار دی، اگر یہ اتنی سستی مرغیاں دے گا تو میری دکان بند ہو جائے گی۔ وہاں بٹو گھر پہنچ کر اپنے ابو کو بتاتا ہے کہ اس نے کسائی سے بات کر لی ہے۔ شاباش بیٹا، اچھا یہ بتا، ایک مرغی کتنے روپے کے حساب سے بیچے گا؟ ابو جی، آپ اس بات کو چھوڑو، میں ایک مرغی 600 روپے کے حساب سے بیچوں گا، اس میں ہمیں اچھا پروفٹ ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تجھے بہتر لگے، کل سے مرغیاں بیچنا شروع کر۔ پھر جب اگلا دن نکلتا ہے تو بٹو مرغیاں لے کر نکلتا ہے اور اس کی دکان پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ لو انکل، میں مرغیاں لے آیا ہوں، 600 روپے کے حساب سے مجھے پیسے دے دیں۔ میرے پیارے بھائی، جو میں نے تم سے کل بدتمیزی کی تھی، ساری رات نیند نہیں آئی۔ ساری رات میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہا کہ میں نے معصوم لڑکے کے ساتھ کیا کیا۔ بھائی، میں تجھ سے 600 کے حساب سے مرغیاں خریدنا چاہتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے مکھن لگانے کی۔ آئندہ میں تمہیں ایک بھی مرغی نہیں بیچوں گا اور مجھ سے بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پیار سے بات کر رہا ہوں، تو مجھے نخرے دکھا رہا ہے، بہت پچھتائے گا تم۔ بٹو مرغیاں بیچ کر واپس آ جاتا ہے اور وہاں مرغیاں سستے ہونے کی وجہ سے سارے لوگ اسی سے مرغیاں خریدنے لگتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر میٹھے کے ہوش اڑنے لگتے ہیں۔ یہ تو سارا کام ہی خراب ہو گیا، میری دکان پہ تو کوئی گراہک بھی نہیں آ رہا۔ میٹھے، کوئی حل نکال۔
वरना तुम और तेरी बेगम भूखे मर जाएंगे। मीठा अपनी दुकान छोड़कर वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। आए मेरे मिठे, आई लव यू। आज तो बड़ी जल्दी मुर्गियाँ बेच के आ गया। ओ बेगम, मिठे या खाक बेच के आ गया। आज एक भी मुर्गी नहीं बिकी। ओ मेरे मिठे, बता ऐसा क्या हुआ है। फिर मीठा नसीबो को सारी बातें बताता है। नसीबो ये बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। मिठे, ये क्या किया? मैंने कितने बड़े बड़े सपने सजाए थे कि तेरी मुर्गियों की कमाई में मैं दुबई जाकर डांस करूं। तूने तो मेरे सारे ख्वाबों पे पानी फेर दिया। अपना मुंह बंद कर, आई बड़ी माइकल जैक्सन की बेटी। मैं मुर्गियों की वजह से परेशान हूँ, तुझे डांस की पड़ी हुई है। कोई हल निकाल जिससे हमारा कारोबार दोबारा से चलने लग जाए। एक हल है मेरे पास, लेकिन ये बात किसी को मत बता दियो। फिर नसीबो मीठे को एक बात बताती है जो उसे बहुत पसंद आती है। अरे बेगम, ये तो प्लान बहुत ज़बरदस्त है। अभी मार्केट में ऐसा कोई प्लान नहीं आया। मैं कल ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर यही काम करूँगा। उसके बाद जब अगला दिन निकलता है तो मीठा अपनी दुकान पर खड़ा होकर बिट्टू के आने का इंतज़ार करता है। आने दो इस मोटे को, फिर देखना मैं इसके साथ क्या करता हूँ। इतनी देर में बिट्टू आ जाता है। आजा बिट्टू, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मुर्गियों की वजह से मेरी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी वजह से आपको फ़ायदा हो गया। मुर्गियां बेचने के बाद जब बिट्टू अपने घर जाता है तो मीठा भी उसके पीछे जाता है और उसका घर देख लेता है और उसके बाद वापस अपनी दुकान पर आकर खड़ा हो जाता है और अपनी चाल चलने के लिए अगले दिन का इंतज़ार करता है। जब अगला दिन निकलता है तो मीठा अपने दोस्तों के साथ भेस बदल के बिट्टू के घर चला जाता है। अरे बाबा, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी मुर्गियाँ हैं। हमें तुम्हारी मुर्गियाँ बहुत पसंद आई। हम तुमसे सारी मुर्गियाँ 5 लाख रुपए में ख़रीदना चाहता है। क्या 5 लाख रुपए? ये तो बहुत ज़्यादा हैं। तो तुम्हारी मुर्गियाँ भी तो बहुत ज़्यादा और नायाब हैं। ये पैसे ले लो और मुझे अपनी सारी मुर्गियाँ दे दो। नहीं, मेरी किसाई से बात हुई है, मैं मुर्गियाँ आपको नहीं दे सकता। बिट्टू बेटा, तू पागल हो गया है। ये हमसे इतनी अच्छी कीमत पे मुर्गियाँ खरीद रहे हैं। बस मैं इन्हें ही बेचूंगा। पर अब्बू जान। बस और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। भाईजान, आप ये मुर्गियाँ ले जा सकते हो। मीठा सारी मुर्गियां लोड करवाता है और उन्हें पैसे देकर चला जाता है। देख बेटा, मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी बड़ी रकम नहीं देखी। पूरे 5,000 की मिठाई मंगवा कर पूरे गांव में तकसीम करूंगा। वो जैसे ही पैसे उठाता है तो नीचे पत्थर होते हैं। अरे बेटा, नीचे तो पत्थर हैं। वो आदमी हमें लूट कर ले गया। अब्बू जान, मैंने आपको मना किया था कि ऐसे ऐरे गैरों पर यकीन ना करो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अरे बेटा, ये सब छोड़ और उन लोगों को जाकर पकड़। वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। बिट्टू उनके पीछे जाता है लेकिन उन लोगों ने कहाँ मिलना था। अगले दिन मीठा सुबह सवेरे अपनी दुकान पर वो मुर्गियाँ रख कर और कम रेट वाला बोर्ड लगाकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो दुकानदार भी अपनी दुकान की तरफ आ रहा होता है। जैसे ही वो दुकान पर पहुंचता है, मीठे की दुकान पर रश देखकर हैरान हो जाता है। ये इसने मुर्गियों का रेट इतना कम कैसे कर दिया? और इसके पास तो इतनी सारी मुर्गियां आ गई हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वो अपनी दुकान पर खड़ा होकर बिट्टू का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन ना तो बिट्टू आता है और ना ही कोई ग्राहक उसकी दुकान पर मुर्गियां ख़रीदने आता है। वो थक हार कर अपनी दुकान से निकलकर बिट्टू के घर पहुंच जाता है। अरे ये क्या बिट्टू, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास बहुत सारी मुर्गियां हैं, लेकिन यहाँ तो एक भी मुर्गी नहीं है। अरे भाई, अब हम तुम्हें क्या बताएं, हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है। मतलब कैसा धोखा?
अरे अंकल, कल एक फराडी हमारे घर आया था और हमें धोखा दे के सारी मुर्गियां ले गया। अच्छा, तो अब समझा वो फराडी कौन था। कौन है अंकल, जल्दी बताओ। बेटा, वो फराडी मेरे दुकान के साथ वाला मीठा ही है। तभी तो मैं कहूँ उसके पास इतनी सारी मुर्गियाँ कहाँ से आ गई, और उसने रेट भी कम कर दिया। चलो उसके पास चलो, हम अभी उससे मुर्गियाँ वापस लेते हैं। भाई, अब मुर्गियाँ तो वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बहुत चालाक और लालची है। हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा। बस आप बहुत सारे अंडे इकट्ठे कर कर उस पे मुर्गी बिठा दो, बाकी मैं वहाँ जाकर उसे जाल में फंसाता हूँ। ये कहकर वो अपनी दुकान पर चला जाता है और आकर अपनी दुकान पर खड़ा हो जाता है। आओ गरीब बाबे, मेरा तो सारा माल बिक गया और तुम्हें वो लड़का मुर्गियां देने भी नहीं आया। अरे मीठे, तू मुर्गियाँ ही बेच, मेरे तो दिन बदलने वाले हैं। मैं अभी उस लड़के के पास गया था। उसके पास एक ऐसी मुर्गी है जो एक बार में बहुत सारे अंडे देती है। मैंने दुबई के शेख को फ़ोन कर दिया है। मैं उससे वो मुर्गी 20 लाख की लूँगा और 50 लाख की बेचूँगा। ये सुनकर मीठा हक्का बक्का रह जाता है। अरे क्या रे, ये सच कह रहा है? मैंने ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना। मीठा अपनी दुकान से निकलकर बिट्टू के घर जाता है तो वहाँ बिट्टू एक मुर्गी और बहुत सारे अंडों का इंतज़ाम किए बैठा होता है। मीठा ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। अरे वाकई ये हज़ारों अंडे देने वाली मुर्गी है। मैं बगैर टाइम ज़ाया किए 20 लाख रुपए लेके आता हूँ और ये मुर्गी शेख को बेचकर अमीर बन जाता हूँ। ये कहकर मीठा अपने घर से 20 लाख रुपए लेके आता है और बिट्टू के सामने मिन्नतें करने लगता है। अरे बिट्टू बेटा, तू ये मुर्गी 20 लाख में इसे बेच दे। आखिर तू उस दुकान वाले को भी बेचेगा, इसे ही बेच दे और इससे पैसे लेकर अच्छी तरह गिन ले। अंकल, आप बेफिक्र रहें, ये पूरे 20 लाख हैं। मीठा वहाँ से मुर्गी लेकर चला जाता है और अपनी दुकान पर आकर खड़ा हो जाता है। हा 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 हा, ये बुड्ढा कैसे शेख का इंतज़ार कर रहा है। उसे क्या पता मैं उस मोटे बिट्टू से मुर्गी खरीद लाया हूँ। ये तो मुझे वही मुर्गी लग रही है जो मैंने बिट्टू से खरीदनी थी। हा 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 हा। तुम इससे ख्वाब ही देखते रहना। मैं उस मोटे को फंसा कर मुर्गी ले आया हूँ और तुम्हें एक मज़े की बात बताऊँ, मैं उसे सारी मुर्गियाँ धोखा देकर लेके आया था। अरे अरबी भाई, आप मेरे पास आ जाओ, आपकी नायाब मुर्गी मेरे पास है। बिट्टू अपनी नकली दाढ़ी हटाता है तो मीठा ये देखकर हैरान रह जाता है। तुझे क्या लगा था तू हमें बेवकूफ़ बनाकर बच जाएगा? देख, हमने मिलकर तुझे बेवकूफ़ बना दिया। तूने हमें धोखा देकर हमसे सारी मुर्गियां खरीदी। हमने तुझसे 20 लाख रुपए लेकर और तुझे आम सी मुर्गी दे दी। हाँ मीठे, मैंने बिट्टू के साथ मिलकर तुझे सबक सिखाने के लिए बेवकूफ़ बनाया है। अब तू इस मुर्गी के अंडे निकलवा के दिखा मुझे। अरे भाई साहब, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे भाई, मुझे मेरे 20 लाख वापस कर दो, अब मैं कभी धोखेबाज नहीं करूँगा। तुझे सज़ा ही ऐसी मिली है, तू कभी धोखा देने के काबिल ही नहीं रहेगा। बिट्टू कहता है अब मैं 20 लाख रुपए की मुर्गियां लूँगा, उन्हें पालकर भाई साहब को बेचा करूँगा। इस तरह मीठे को अपने किए की सज़ा मिल जाती है।